Try to start with the next topic better. Ideal gas equation. Ideal gas equation. ठीक है? What is an ideal gas equation, beta? Okay. If I take a gas in a container at a pressure P1, volume V1, or temperature T1, keeping the temperature constant, yani I am applying Boyle's law. Boyle's law says that pressure is inversely proportional to volume, keeping temperature to be constant. If the gas is being heated, there is no change in temperature. Temperature तो T1 का T1 ही रहेगा, और pressure will become for me V2 and V1 will become for me V. Again, if I am heating this gas, keeping the pressure constant right now, यानी pressure P2 का P2 होगा, V is becoming right now V2, and temperature is becoming for me T2. That means which law I am applying here, beta? Charles law. Okay, volume is directly proportional to your temperature. So first I took some gas, keeping the temperature constant. If I heated the gas, I found that pressure P1 is being increased from P1 to P2, and volume V1 is changing from V1 to some V. And T1 is changing to your same T1 because temperature is remaining constant. तो इसके लिए अगर हम लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं यहाँ पर बॉयल्स लॉ का, सो P1 V1 विल बी इक्वल टू योर P2 into your V. इसमें से V निकाल सकते हैं, V is equals to P1 V1 divided by your P2. This is my equation number 1. If I am applying the Charles law from the second stage, बेटा, volume is directly proportional to temperature, तो यहाँ पर हो जाएगा volume V divided by इसका temperature T1 is equals to your V2. Temperature is right now for me T2. तो वॉल्यूम V बनेगा मेरे पास T1 into V2, T1 into your V2 divided by your T2. So this is my equation number. अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो P1 V1 divided by your P2 is equals to your T1 V2 divided by T2 आया. तो all the P1 terms and P2 terms you take on one side बेटा, तो ये हो गया P1 V1 divided by your T1 is equals to your P2 V2 divided by your T2. So this is your equation which is applicable for all the gases. We know that all the real gases behaves like an ideal gases at high temperature and low pressure, and hence at high temperature and low pressure I can say that all the gas will obey the gas laws, isn't it? This is known as of your ideal gas equation. P1 V1 by T1 will be equal to your P2 V2 divided by your T2. Is that clear for everyone? Okay. चलो अब यहाँ पर देखो एक स्टार मार्क डाल के, for 1 gram of gas, for 1 gram of your gas, PV by T is equals to some constant. That is nothing but R. R is known as what, beta? Gas constant. Okay, specific gas constant भी बोल सकते हैं basically. Okay, for m grams के लिए कितना लिखोगे बेटा? For m grams of gas, PV divided by T is equals to your m times of your R, isn't it? That means I can write here PV is equals to m into R into your capital T. PV is equals to your MR into your T. Clear? This is your ideal gas equation for your number of your grams में अगर ले रहे हैं, PV is equals to your MRT. ठीक है ना? So this was known as what for me? Gas law or gas equation. Gas equation. That is very important point, beta. 1 gram of all gases, 1 gram of your all gases does not occupy same volume at STP. Very important point, beta.
बच्चे और कॉन्फिडेंट और लुक करते हैं इसको. 1 gram of your all gases does not occupy, better not occupying, does not occupy the same volume. अगर हम लोग ग्राम्स में ले रहे हैं, केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा ही होगा बेसिकली. फॉर 1 gram ऑफ योर गैस, हम लोग मोल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अभी. I'm talking about your grams. So for 1 gram of your gas, if I'm talking, PV by T is equals to small r. Small r is known as a specific gas constant. For m gram of your gas, ये 1 gram के लिए था. PV by T is equals to your mr. So PV is equals to mRT for 1 gram of all gases does not occupy the same volume at your STP. Clear, beta? Chalo. If I'm talking about for 1 mole of every gas occupy same volume, will occupy your same volume at your standard temperatures and pressures. तो मैं 1 mole के लिए क्या लिख सकता हूं बेटा? For 1 mole I can write PV by T is equals to a constant that is known as capital R. ठीक है ना? 1 mole के लिए PV by T is equals to your capital R. For n moles के लिए कितना लिखोगे बेटा? For n moles I can write PV is equals to n into R into capital T. ये हो गया PV is equals to nRT. And this equation is known as of your ideal gas equation. This is your ideal gas equation, where n is your what? Number of moles. N is your number of moles. How do you calculate the number of moles? N is equals to mass by molecular mass. By your molecular mass. Yani N is equals to your M divided by its molecular mass. Molecular mass is always expressed in your grams. ओके और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप लोग को मालूम ही होगा. कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 8.314 जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, isn't it? Or else capital R is also equal to your 2 calorie mole inverse Kelvin inverse. Okay, or else even I can write here capital R is also equal to 0.0821 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. These are the 3 values you need to remember for the value of your R for the calculations. ठीक है ना? So that are the basic standard values you need to remember. And number of moles is equals to mass by your molecular weight per definition. So PV for 1 mole of your every gas occupies the same volume at your standard temperature pressure. तो for n moles के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग? PV is equals to your nRT, which is known as of your ideal gas equation, where n is equals to your mass by your molecular weight. Clear है सभी को? Is that clear? Is that clear? Sure. Star mark as PV is equals to M into R into T. This is my equation number 1. And PV is also equal to your N into capital R into T. Equation number 2. Equating 1 and 2. दोनों को इक्वेट करो, दोनों का PV सेम है, तो MR into capital T is equals to NR into capital T. तो capital T gets cancelled. So M into R कैसे लिख सकता हूँ बेटा? M into your R is equals to N into your capital R. Okay. So small r कैसे लिख सकता हूँ मैं now? Small r is equals to N divided by small m into your capital R. Clear है? कुछ गलत लिखा है मैंने? M into RT is equals to your NR into capital T. So M into R is equals to your N into your RT by definition. तो स्मॉल r is equals to कितना आ रहा है मेरे को? N by M. N by M कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? As N is equals to small m by capital M.
तो m को इधर ले लो, तो n by your m will be equal to 1 by capital M आएगा. तो small r is equals to capital R divided by molecular weight. ऐसा भी लिख सकते हो, या small r is equals to n into mr by लिख सकते हो basically. Okay, that means specific gas constant is inversely proportional to molecular weight. यानी जिसका molecular weight कम उसका R value ज्यादा. तो किसके लिए ज्यादा होगा बेटा? कौन से गैस के लिए? So R is maximum for obviously for the first element, that is nothing but hydrogen. Again, इसका molecular weight will be lesser than to any other element. ठीक है ना? Is that clear? The basic things ही है जो आप लोग को ऑलरेडी केमिस्ट्री में हो चुका है. स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में का रिलेशन, कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, या कैपिटल आर भी लिख सकते हो आप स्मॉल आर इनटू योर कैपिटल एम, डिपेंड करता है कैसा दे रहा हो बेसिकली. और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, यानी जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उसका आर वैल्यू वैसा वैसा कम होते चले जाएगा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एक पॉइंट लिख लो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो आप लोग? Number of molecules capital N will be equal to your number of moles जो भी ले रहे हो, multiplying with your Avogadro number, that is your Na. मतलब number of molecules will be equal to N into your Avogadro number. Number of molecules is equals to your N into your Avogadro number, यानी number of moles is also equal to number of molecules divided by Avogadro number. अगर n number of molecule 1 है तो n is inversely proportional to Avogadro number हो जाएगा. ठीक है ना? So I can write here, for 1 mole of gas PV will be equal to n की वैल्यू 1 R into capital T लिख सकता हूँ, isn't it? For one molecule of gas, PV will be equal to how much beta? PV is equals to n will be equal to number of molecules कितने ले रहे हैं? कैपिटल n की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ, so it is your capital R divided by Avogadro number into T. R by your Avogadro number is known as what beta? A constant which is known as Boltzmann's constant. And PV is equals to your, this will become for me K into your T. This is for one molecule. This is for one molecule. For n molecules के लिए कितना हो जाएगा बेटा? For n molecules PV is equals to number of molecules से multiply कर लो, so it is PV is equals to n into K into T. So for number of molecules PV is equals to your NKT. Clear? हाँ बेटा, मैं वैसे भी मैसेज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स फुल. ठीक है? For one molecule लिख रहे हैं तो PV is equals to KT. And for one molecule, for n number of molecules clear हो तो PV is equals to your n into your K into your T. Clear है? K की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? किसी को याद है K की वैल्यू निकालने का तरीका? Boltzmann's constant is equals to your R by Avogadro number. यानी R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 डिवाइडेड बाई Avogadro नंबर कितना होता है? 6.023 into 10 to the power of 23. तो K की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, विल बी गेटिंग 1.38 इंटू, ये पावर ऊपर चले जाएगा 10 to the power of -23 जॉल पर योर केल्विन is the value of your K. K value is equals to R by your L. Clear है? So K value is equals to 1.38 into 10 to the power of -23 और K value is equals to your R by your L. आई बात समझ में सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? बेसिक्स है, ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप लोग ने किया, ये चीजें हैं, नया कुछ नहीं है इसके अंदर. तो फिर से एक बार देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में अपने क्या पढ़ा? PV1 P1 V1 by T1 is equals to P2 N2 by your T2. For 1 gram of a gas, PV by T is equals to small r. Small r is known as a specific gas constant. For m gram of a gas, PV by T is equals to m into your R. यानी PV is equals to MRT is known as gas equation. And 1 gram of all gases doesn't occupy the same volume at your STP. 1 mole of every gas will occupy the same volume at STP बेटा. उसीलिए हम 1 mole के लिए जब हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं
So we use an ideal gas equation PV is equals to nRT. N is equals to mass by molecular mass और molecular weight बोल सकते हो. So PV is equals to MRT और PV is equals to nRT के equate करें तो we'll be getting the relation between small r and capital R. Small r is equals to capital R divided by M. यानी small r is inversely proportional to molecular weight. यानी जैसे जैसे molecular weight बने बढ़ेगा R value उसकी कम हो जाएगी. R value is maximum for what बेटा? Hydrogen. Number of molecules निकालने का तरीका बेटा, number of your molecules is equals to your number of moles into Avogadro number. For 1 mole PV is equals to RT. For 1 molecule PV is equals to your KT. For n molecules PV is equals to NKT. और K की वैल्यू हो गई R by N naught और value of that one is 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. Clear हो गया सभी को? चलो next one चलते हैं. Application of gas laws. Application of gas equations. Applications of your gas equations. Okay, first one हम लोग ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं. Various forms of graphs. ठीक है, फर्स्ट वाला वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. हम लोग बात करते हैं पहले वीटी ग्राफ के बारे में और यहाँ पर ग्राफ ले रहा हूं मैं केल्विन में. सो व्हाट विल बी द ग्राफ बेटा? कैन एनीवन टेल मी? If I am drawing the graph between volume versus your temperature और temperature अपन लिया Kelvin में, so we will be getting a graph which is passing through the straight line like this. और ये हो गया इसका slope theta. कोई बता सकता है कैसे लिख सकते हैं? PV is equals to using ideal gas equation. Ideal gas equation. What is that? PV is equals to N into R into T. तो यहाँ पर अपने को प्रेशर कांस्टेंट लगाना है. अगर प्रेशर कांस्टेंट लगाया तो V is equals to N into R into T divided by P. तो इसमें ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा N by T. तो कांस्टेंट बन जाएगा. तो यहाँ पर हो गया टेम्परेचर T. Isn't it? PV is equals to NR by your P. If I'm equating this one with y is equals to kx, y is equals to some constant k into your x. Y axis पे वॉल्यूम है, x axis पे टेम्परेचर है, तो k की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ना, isn't it? So y is equals to k into your x. Like we know the graph y is equals to mx, y is equals to mx plus c. अभी c तो 0 है, तो y is equals to m into x के बराबर हो जाएगा, isn't it? तो y की जगह y है, m की जगह क्या है बेटा? m is equals to some constant k, that is nothing but of your n into r divided by your p. इसका मतलब क्या? tan theta जो है यहाँ पर हम लोग जो स्लोप ले रहे हैं, tan theta will be equal to n into r divided by p. यानी theta will be equal to your tan inverse of n r divided by your p. ठीक है ना? Volume versus temperature graph will be a straight line passing from the origin. आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा वीटी ग्राफ. ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. देखो, इफ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन volume versus your temperature that is in taken in Kelvin. और ग्राफ्स दे रखा है ऐसा अपने को 3 ग्राफ्स, 1 then another graph 2 then another graph 3. ठीक है ना? This one is your A, this one is your B and this one is C. यहाँ पर प्रेशर ये है मान के चलो, यहाँ पर प्रेशर PB और यहाँ पर प्रेशर PC और इसका टेम्परेचर मान के चलो TA है, इसका टेम्परेचर TB है और इसका टेम्परेचर TC है. तो
तो अब हम क्या करेंगे, whenever we need to write this one, so if I'm asking you write the relation between what is relation between PA comma PB and PC, यानी कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो अपन क्या करेंगे ऐसे वाले कंडीशन में, कोई एक पॉइंट मान के चलो, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर भी एक पॉइंट ले रहा हूं बेसिकली, कोई एक पॉइंट लेके चलो और जिसको वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, चाहे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो या वॉल्यूम को, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो। ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया वॉल्यूम का, यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने वॉल्यूम का, और यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम जो है ना कांस्टेंट है, सी इज योर कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट कर दिया, और इस पे मैंने टेम्परेचर लिखा, इजंट इट? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर ऑफ योर ये क्या हो जाएगा, temperature of your A is lesser than temperature of your B is lesser than temperature of C, क्योंकि आगे बढ़ रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बेटा, isn't it? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, PV is equals to nRT में C is greater among the three। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे बेटा, अगर टेम्परेचर इज लेसर देन, ए का टेम्परेचर बी से कम है और बी का टेम्परेचर सी से कम है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ योर ए। ठीक है ना, स्लोप्स में देखो, स्लोप्स में भी देखो तो वही कंडीशन आ जाएगा, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, टेम्परेचर, इजंट इट? वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ होना है मुझे, बताओ जल्दी से, PV is equals to NR into T, P is directly proportional to temperature, है कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा, so therefore I can say that pressure of your C is greater than pressure of your B, pressure of your B is greater than pressure of your A। आई बात समझ में? स्लोप से भी निकाल सकते हो आप बेटा, R by slope tan theta is equals to NR divided by P, जिसका स्लोप यानी मान के चलो इसके स्लोप है मेरे पास θ1 और θA, इसका स्लोप है θB और इसका स्लोप है θC, तो θA is greater than θB is greater than θC, तो θ और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर θA बड़ा है, θA is greater than θB, then pressure of your A will be lesser than pressure of your B will be lesser than pressure of C। बात समझ में आए सभी को? क्लियर है बेटा? No sir, not getting before ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कौन बोल रहा है यहाँ पर? तुम केमिस्ट्री को फिजिक्स में क्यों घुसड़ रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्यों लगा रहे हो, जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ उसको लगाओ ना दिमाग में, और बेसिक्स ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। केमिस्ट्री में इतना पढ़ चुके हो यार, इतना छोटा सा कंडीशन आप लोग को याद नहीं आ रहा। नो सर, नॉट गेटिंग बिफोर ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहाँ बताया, ये बताओ तुम पहले। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहाँ बताया मैंने, बोलो। मैं क्या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ? स्लोप वाला मेथड समझ में देखो, tan थीटा इज इनवर्सली, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना बेटा। तो ग्राफ में देखो किसके पास थीटा ज्यादा है, ए के पास थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है ना। तो अगर थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर थीटा ए ज्यादा है तो प्रेशर ये कम हो जाएगा ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इफ वी कंसीडर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही तो बोल रहा हूँ ना बेटा।
क्लियर है सभी को? इज दिस ग्राफ क्लियर? चलो ये ग्राफ जरा देख के बोलो। यहां पर है मेरे पास वॉल्यूम और यहां पर है अभी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट इन केल्विन। तो इसका ग्राफ क्या होगा? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर दिस वन? ये v और t का ही ग्राफ लिखना है ना बेटा। v इज इक्वल्स टू k इंटू टेम्परेचर अपन किस में लिख रहे हैं राइट नाउ? यहाँ पर टेम्परेचर इज रिटर्न राइट नाउ जनरली किस में होता है? केल्विन में। तो v इज इक्वल्स टू k इंटू टेम्परेचर इन केल्विन में व्हाट बेटा? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लिखोगे, यानी v इज इक्वल्स टू k इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इंटू कॉन्स्टेंट k। ये आया सभी को? कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया? y इज इक्वल्स टू m इंटू और x प्लस c से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो c की जगह टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आ गया और y की जगह वॉल्यूम है और k की जगह स्लोप है। ठीक है सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरी वॉइस तो मैक्सिमम ही है ना बेटा? इज वेरी वेरी गुड। ऑरिजिन की अबाव रहेगी, यहां से स्टार्ट हो, ठीक है ना? तो ये हो गया कांस्टेंट। ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर मैं इसको स्लोप बना रहा हूं यहाँ पर, सो दिस विल बी योर थीटा। क्लियर है ग्राफ? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ वाई एक्सिस पे स्टार्ट करेगा, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नो, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। केमिस्ट्री में कितने ग्राफ्स करेंगे देखो बेटा आप लोग। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सीधी सीधी कहानी है यहाँ पर। मैंने दो मेथड्स लेके मेथड्स में किया हुआ है बेटा इसको, सो बी स्पेसिफिक। जो मेथड आपको समझ में आया वो ले लीजिए बेसिकली, ठीक है? चलो, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लगा रहे हो तो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन passing from the negative x axis and positive passing from the positive y axis. क्लियर है सभी को यहां तक? ये ग्राफ क्लियर है सभी को? चलो, now let us try to play with this graph. इस पे थोड़ा हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं। Let us play with VT graph, volume versus temperature graph. कैपिटल टी में लिख लो, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाता है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ्स, ठीक है ना? थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए आप लोग को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ये पहला वाला ग्राफ यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। पहले वाले ग्राफ में देखो बेटा, आई नीड द ग्राफ बिटवीन v बाई टी वर्सेस योर टेम्परेचर। v बाई टी वर्सेस योर टेम्परेचर का ग्राफ करना कुछ नहीं है, पहले इसका रिलेशन लिखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का। v इज इक्वल्स टू k इंटू टी। तो v बाई टी इधर ला लो, v बाई टी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा? एक कांस्टेंट आ रहा है ना? तो v बाई टी एक कांस्टेंट आएगा, दैट मींस इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। ऐसे ही आएगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो, उससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा उसको। ग्राफ क्लियर है सभी को? ग्राफ क्लियर है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला देखो बेटा, this one is volume, this is your temperature. VT versus temperature का ग्राफ होना मुझे। सेम अगेन प्रूफ, V is equals to K into T। अब देखो बेटा, मुझे V into T आना है तो क्या करूं? दोनों को T से मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ से T से मल्टीप्लाई करूं। If you multiply with your T on both the sides, multiply both sides with T, तो क्या बन जाएगा? V into T is equals to K into T into T।
के टी स्क्वायर। आई बात समझ में? के तो कांस्टेंट ही है, वी ओ टी हम लोग ने वाई एक्सिस पे लिया तो y इज इक्वल्स टू के इंटू ये टी स्क्वायर पूरा क्या होना चाहिए बेटा, अपने को तो टी होना है ना, तो टी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर। y is equals to k into x square आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल्स में, it represents me the equation of parabola, equation of your parabola. So what will be the graph for this one? Graph will be parabola in the upward direction, increasing slope. आई बात समझ में सभी को? इंक्रीजिंग स्लोप, पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप। आई बात समझ में? तरीका समझ में आया करने का? वीटी वर्सेस टी ले रहा हूं मैं, यानी टी के जगह अपने को क्या डालना है, ये टी के जगह अपने को एक्स डालना है, ठीक है ना? एक ग्राफ क्लियर है सभी को? चलो और एक ग्राफ बताओ बेटा। मान के चलो आई एम टेकिंग द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम टेम्परेचर वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ होना है मुझे, वॉल्यूम टेम्परेचर वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ होना है। कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं हम लोग? टी स्क्वायर यानी एक्स पे पूरा टी स्क्वायर ही लेना है अपने को, isn't it? So same condition v into t is equals to k into your t square. Aisha Fatima बोलो बेटा, tell me. vt is equals to k into t square, यानी पूरा x एक्सिस पे t स्क्वायर लिखना है अपने को, ठीक है? यानी vt पे क्या लिखोगे बेटा, y is equals to k into t square is nothing but x. x पे क्या लिया आपने, ये t square is totally is equals to x बेटा। सो इसी को हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ योर y is equals to, compare with y is equals to m into x, so we'll get a straight line passing from the origin। ये हो गया इसका स्लोप। आई बात समझ में? इज द स्लोप क्लियर फॉर एवरीवन? vt वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी a straight line passing from the origin। ग्राफ्स आ रहे सभी को? चलो नेक्स्ट ग्राफ देख लो। if I need to draw the graph between vt versus, if I need to draw graph between vt versus your 1 by t graph, 1 by t ग्राफ कैसे करोगे बेटा? vt नहीं, खाली वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम वर्सेस 1 by t ग्राफ का ग्राफ बताओ। सेम कंडीशन, v is equals to k into t, I'm writing this one, v is equals to k divided by, इसको क्या मैं 1 by t से लिखूं, 1 by t से लिखूं मतलब क्या है, t फिर ऊपर जाके t आ जाएगा ना, तो v is equals to your k by your 1 by t, isn't it? यानी this can be equated with your y is equals to your, y is equals to your कितना आ जाएगा कोई बताएगा? So what will be the relation for this one? y is equals to your k divided by your x, y is equals to k by your x क्या ग्राफ होता है? बॉल्स लॉ के सर का p is inversely proportional to volume, बोलो बेटा। यस बेटा, am I audible? हेलो, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बॉयल्स लॉ के रिलेशन जैसा होता है। दिस वन इज राइट नाउ रिप्रेजेंटिंग मी व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो एक्स एक्सिस पे 1 by t है, वॉल्यूम है, तो दिस विल बी योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? k by t क्या है? हाँ बेटा, k by t नहीं आता ना, k by t कैसा आता, 1 by t को लिखिए तो kt आता ना फिर वापस।
नेक्स्ट वन, अब इसका ग्राफ ट्राई करो कभी, वॉल्यूम वर्सेस रूट टी का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस रूट टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा। अगेन एक ही इक्वेशन ले रहा हूं मैं, v इज इक्वल्स टू के इंटू योर टी, तो वॉल्यूम v तो ही है, k इंटू इसको रूट टी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं था, दिस वन इज नथिंग बट t ओनली ना, सो कंपेयरिंग विद y इज इक्वल्स टू k इंटू योर एक्स स्क्वायर, एंड x की जगह क्या है मेरे पास, x की जगह क्या है रोटी, x की जगह रोटी है, दिस वन इज टोटली योर इक्वल टू x, so y is equals to your k into x square is what beta, equation of parabola, so this one is again equation of parabola, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, अगेन इंक्रीजिंग स्लोप लाइक दिस। आई बात समझ में सभी को, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस वन, ये पूरे क्वेश्चंस ही करा रहा हूं मैं, ये जितने भी ग्राफ्स है ना ये पूरे क्वेश्चंस ही है जो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं, वॉल्यूम वर्सेस रूट एक्स का ग्राफ कैसा आता, वॉल्यूम वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा आता, वीटी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आता, वीटी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आता, v/t वर्सेस t का ग्राफ कितना था, जितने भी ग्राफ्स अपने को पूछे जाते हैं पूरे के पूरे ग्राफ एक ही जगह में करा रहा हूँ। हाउ k इंटू एक्स स्क्वायर सर, रूट और स्क्वायर क्यों कैंसिल कर दे रहे ना अपन, कहाँ कर दे रहे ना अपन, कहाँ कर दे रहे अपन, कहाँ करे अपन, t को मैं क्या कर रहा हूँ रूट टू टी होल स्क्वायर, ऐसे नहीं तो रूट टी होल स्क्वायर करे तो t आता ना, तो अपने को ग्राफ क्या चाहिए, वॉल्यूम वर्सेस रूट टी के पास चाहिए, तो इसलिए मैंने रूट टी होल स्क्वायर किया, रूट टी होल स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, रूट ऑफ योर एक्स होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स ओनली ना, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पे अपन को क्या दे रखा है, रूट टी दे रखा है, तो एक्स को एक्सिस में मैंने एक्स लिख लिया, के जगह ये है तो y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर बन रहा, स्टार्टिंग y x इज ओनली एक्स स्क्वायर नॉट अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, तो क्या बोल रहे कि स्टार्टिंग स्क्वायर क्यों करे सर, स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि मुझे टी चाहिए, मेरा एक्चुअल इक्वेशन ये है ना बेटा, v इज इक्वल टू के टी चाहिए मुझे, रूट टी तो नहीं लिख सकता ना, तो रूट टी होल स्क्वायर करूंगा तो टी आएगा ना, है कि नहीं, रूट टी और होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, टी को ही मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैथ्स में, मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ मैं, स्कूल का मैथ्स लिख रहा हूँ, स्टर स्ट्रेट नहीं आता लास्ट ग्राफ में, स्ट्रेट कैसा आता, y इज इक्वल टू के इनटू x आए तो स्ट्रेट आता ना, यहाँ पर x नहीं है ना, y इज इक्वल टू के इनटू एक्स स्क्वायर, आपने मोशन इन 2D डायमेंशन नहीं पढ़ा प्रोजेक्टाइल्स में, y इज इक्वल टू के इनटू एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, y इज इक्वल टू के इनटू एक्स स्क्वायर ही होता है ना, पैराबोला, ठीक है सर, रूट टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सर क्या 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 सेमिना सोफिया क्या बेटा, जोया क्या आपका प्रॉब्लम क्या है जोया, स्कूल मैथ्स लिख रहा हूँ बेटा, रूट टी होल स्क्वायर इज नथिंग बट टी ओनली, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते, देखो ये देखो अलग ही होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए ना, तो क्या करूं, कैंसिल हो गए तो जो टी आया ना, कैंसिल हो रही है बल्कि तो टी लिखा मैंने, टी को लिखने का और एक तरीका लिखा है मैंने समीना, वहां पर कुछ नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए टी, रूट टी होल स्क्वायर मतलब कितना, टू टी ना, यहाँ पर लिखा ना, देखो यहाँ पर इतना बड़ा लिखा मैंने, दिख रहा नहीं, अरे बाप रे, फिर केमिस्ट्री में ग्राफ्स कैसा करें मैं तुम लोग का, स्टेट्स ऑफ मैटर में इतने सारे ग्राफ्स है आप लोगों को, चलो 6th वन देखो बेटा, now this one is again important graph, if he is asking the graph between ln of your v versus ln of your t, ln मतलब क्या, ln x is always equal to your what, log x, याद है ना, तो अपना रिलेशन क्या है, v is equals to k into t, इसको log में लिखो
So this will become for me ln of your v is equals to ln of your k plus ln of your t. सर मुझे लॉन्स वगैरह लिखने नहीं आता बोले तो आप लोग फर्स्ट प्रैक्टिस टीचर को पूछे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, आपको पूरा काइनेमेटिक्स में इतना ग्राफ करे आप लोग. ओके, कंपेयर इट विथ योर y is equals to your mx plus of your c. ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, y एक्सिस पे अगर मैं इसको लिख रहा हूं बेसिकली, तो देखो लिखने का तरीका देखो इसका, तो यहां पर ln v तो ln v ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू x. x के जगह टेम्परेचर होना है तो ये हो गया ln ऑफ योर t, x कांस्टेंट के जगह हो गया ln ऑफ योर k. इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, तो विल बी गेटिंग कांस्टेंट है तो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस. और स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा, ln x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल्स यहाँ पर कितना आया, ln v लिया y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या लिया मैंने, ln ऑफ योर t लिया, और स्लोप की वैल्यू कितनी है 1, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा बेटा, tan थीटा 45, tan 45 is equals to 1. So we'll be getting a graph right now like this one, this theta will be equal to 45 degrees. बात समझ में आया, वेरी गुड. ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, क्लास हो गई. इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को डाल दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए. ठीक है, बाय बेटा.